या प्रकाश मेहरानी है, मनमोहन देसाई नहीं। लेकिन जब मैं मनमोहन देसाई के पीछे देखूंगा तो मेरे को लग रहा है मजा आएगा, एंटरटेनिंग होगा, लॉस्ट एंड फाउंड होगा, भी कैसे मिलेंगे भाई, दैट्स इंटरेस्टिंग पार्ट। या You know, I'd like to talk about one particular character that Pratik Babbar portrayed in India Lockdown. In fact, I remember picking up the phone and speaking to you after when I saw the film. Yeah. And I was really moved by that particular character. That particular character was, of course, straight from real life. I want you to elaborate on that particular character. You know what happened when I wanted to cast Pratik Babbar? So a lot of people, my team, in fact, my writer team also, they were very apprehensive for casting him. He said, "Sir, Pratik Babbar कहाँ पे जाएगा ये migrant के role में? ये नहीं जा पाएगा, ये अच्छा नहीं कर पाएगा." They were very reluctant कि I should cast him. And trust me, when I came, Pratik को मैंने I called him in office. I remember he had tattoos all over his body, and for film I don't know, he has done his hair all blue, so he was looking like a punk completely. And we were thinking, and they were looking at me, बोलते सर देखो कैसे इसको कैसे कास्ट करोगे माइग्रेंट में, he doesn't look like a migrant worker. तो but I said नहीं, मेरा conviction था. Then when I narrated to Pratik, तो he said, "Are you calling me for this role?" So मैंने बोला, "Yeah, this role. Do you think I'll be able to do it, sir?" तो मैं बोला, "Yeah, मुझे पता तू कर पाएगा." So I gave him a lot of references of his mother, in fact. And I told him how Smita ji has done brilliant work in film like Chakra and Paint Pierre or Paap. A lot of people who are not knowing this movie. Yeah. So where she played a rag picker. In Chakra, she was a slum dweller. So I told you see those kind of cinema, and I told him to see Akrosh of Om Puri. I said, "Tu picture dekh, and I'll get the best performance from you." And I called my makeup guy and I said, "Isko pura convert karo, isko alag banao." And my assistant, my writer was still telling, "Sir, ये बहुत ही," because here we had already casted Sai Tamankar, yes, who was playing the, and she's a brilliant actress, brilliant actress, and they said उसके सामने कैसा असर ये होगा. But I see, you know, there's a certain thing, conviction जिसको बोलते हैं. मुझे I know कि I'll remove extra performance from him, and when I may give him a look over completely, his hair I chopped it, पूरा blue बाल उसका काला कर दिया, and पूरा getup देने के बाद he himself was shocked. And as a performance, I used to tell him कि ऐसे कर, and he did it brilliantly. And he saw some movies, and I always used to encourage him. I said, "Remember your mother, the kind of performance he used to do." So I swear it really worked for me. Right. The pep talks I used to give him, I said, "तेरी माँ के बारे में सोच, तूने कितना अच्छा सा performance दिया." And I had seen all his mother's movies recently. Right. I told him, "Keep watching your mother's cinema, और किसी की cinema मत देखो. You are getting inspiration from your house only." And that's really great of him. He got it so brilliantly. After watching the movie, I remember we had a show in Delhi, and Raj Babbar ji was also there to watch the movie in Delhi, and Raj Babbar cried watching the movie. He said, "I can't believe it's Pratik Babbar se tune itna acha kaam nikala hai." So that was really good, and for Pratik I'm very happy कि people recognize he's a brilliant actor. But क्या होता है ना, सही पिक्चरें मिलनी चाहिए. That is also very उसमें कई पोर्शंस थे, मैं चाहता हूँ उनके बारे में बताइए. जब आपने प्रतीक को कहा कि ये सीन्स करने हैं, कहीं से कुछ सड़ा हुआ खाना पड़ा है, कचरे के डब्बे में से खाना उठा के खाना है, you know, what was his mindset at that point of time? Nothing. He was just, I said, go into the character completely. See, Pratik, again, you required a good director for him. Pratik Babbar को आपको guidance बहुत करना पड़ता है. You required him to tell him कि exactly क्या करना चाहिए. Sometimes you have to show him also कि इस तरह का किरदार है, इस तरह का कर. You have to give him that, you know, dose कि थोड़ा सा ऐसा कर. तो he was very particular about it. And वो जो कचरे वाला सीन किया था, वो रियल कचरा क्रिएट किया था हमने, रियल कचरा क्रिएट किया था. And he has to find something to eat over there because he is so hungry, because इतना वॉक किया है पूरे परिवार के साथ and they don't have food. So he is trying to locate some food inside the dustbin. That it was one take, and I couldn't take one second take. I'm telling you, 2 कैमरा थे, and he did it so brilliantly. And I know people have spoken so much about this thing, especially जो कचरे का से खाना खाता है वो. It was, and people related to it so much. I'm going to say people especially who have gone through all this trauma to their respected house, wherever, by walking, they have seen all this trauma, ups and downs, and that was brilliantly portrayed by Sai Tamankar. And the best part, Shweta Basu's character, because sex working के बारे में किसी ने बात ही नहीं किया था, कि how they survived during the whole tenure of lockdown में, बेचारे how they were surviving. So जो एक that phone sex का angle डाला मैंने कि how she's entertaining them, तो ये हकीकत है. तो this is a fact. In fact, I took
Shweta Basu to Kamathipura in Mumbai, and because she wanted to go, she said, "Okay, Madhurji, I want to go before I play this character." I took her over there. We went to the places where they are staying. They are, sitting over there. Jano Nahare hai. Everything we went over there. We took the art director also because we made it so real. So this is my USP of researching for a film. So and they did it brilliantly. Shweta played the role so well, effortlessly, brilliant. So I think that is the beauty of actors. Some actors want to live with it. Sometimes actors are there, they say, नहीं आप डायरेक्टर आप बताइए मेरे को क्या करना है बोल के. That is also one aspect of it. Right. Okay, in between Hindu Sarkar, which was a theatrical release, to now, of course, Bubbly Bouncer and India Lockdown, did you ever miss the highs and lows of? You mentioned you went to the theaters and watched all big films and larger than life cinema, but did you miss the highs and lows of making a film for cinema and enjoying it in the theater? Yeah, definitely. Especially Bubbly Bouncer, when people saw the film, they all thought it should have been a theatrical release after watching the movie because it's a very entertaining film. But obviously, I had a contract with Hotstar that is the first original film of Hotstar. So obviously, I didn't have the say, and they released it on OTT because it was meant to be like that. Yes. Like how you have Netflix, original Netflix, yeah, Amazon and original. So this was meant to be the first Hotstar movie, which they wanted. It was a deliberate move to make a film for people on the OTT because we wanted have to humor. It was a family film, like people from all people are watching. मुझे पता है इतने मेरे को फोन आए लोगों ने कहा बबली बॉन्सर देखी, मेरी दादी ने देखी, नाना ने देखी, बहुत सारे जो थिएटर में नहीं गए थे उन्होंने मिलके देखी. नहीं तो बहुत से OTT की कंटेंट होती है, कैनॉट वॉच विद योर फैमिली. लेकिन बबली बॉन्सर वाज द फिल्म, इंक्लूडिंग माय ओन इंडिया लॉकडाउन में बोल सकता हूँ, यू कैनॉट वॉच इंडिया लॉकडाउन विद योर फैमिली बिकॉज देयर इज सम अडल्ट कंटेंट इन द फिल्म, स्पेशली द सेक्स वर्कर का थिंग, यू कैनॉट वॉच दैट. बट बबली बॉन्सर वाज द फिल्म आप पूरा परिवार बैठ के देखेंगे. लाइक माय फ्रेंड्स है, मेरी दादी जब भी बोर होती बोलती बबली बॉन्सर लगा, वो लगा लेके मैं छोड़ देता हूँ, तो शी एंजॉयज. तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही कमाल का सब्जेक्ट था, बहुत ही अच्छा था. पीपल कनेक्टेड विद इट, पीपल लव द वे, बिकॉज आई वांटेड ऑलवेज कि बाउंसर का वर्ड बताओ यार. हमने देखे एक्टर्स के साथ, पॉलिटिशियन के साथ, बिजनेसमैन के साथ बाउंसर बहुत होते हैं, लेकिन मैंने कभी फीमेल बाउंसर नहीं देखा. तो आई जस्ट फेल्ट इट कि फीमेल बाउंसर का पॉइंट ऑफ व्यू देखा, तो इस पर रिसर्च किया, तो दे वर रियल बाउंसर्स. नाउअडेज लॉट ऑफ पीपल इन पब्स दे keep women bouncers also to handle women over there. Sometimes some women get drunk, so so that is the reason they have started keeping bouncers. Right. But the upsurge started more after Bubbly Bouncer देखने के बाद लोगों ने और भी bouncers रखना शुरू किया. I think that's a great, and I'm very happy for Tamanna Bhatia. I think Tamanna Bhatia is a very talented actress, but she didn't get her due. From so many years she's there. She did brilliant work in South, absolutely great work, good looking, very talented person. But I think Bubbly Bouncer changed her graph as an actress. People noticed her as an actress. She performed very well, and I'm very happy for her career. The kind of recognition she got with Bubbly Bouncer. Right. Coming from a theatrical background, from cinema, larger screen, to making content for the OTT, how difficult is it to access the stars, get finances, and have the freedom to make the content that you wish to make? Yeah, it's very difficult. It's not very easy to get the right budget actor. I mean, today I'm an established filmmaker, so obviously नाम है तो still they will give me that leverage कि ठीक है यार, he's made so many movies, he has got commercial success, national awards, everything. So still I get. I really feel for the new people. I'm sure a lot of eligible filmmakers are here in the audiences. And I feel for them it is very necessary to stick to the conviction, because I understand that मेरे को बोलना आसान है, लेकिन बहुत difficult होता है कि OTT चाहेगा कि certain amount, मैंने certain इस तरह की, क्योंकि डायरेक्टर सोचता कुछ और है, एक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, एक्टर भी अपना कंट्रीब्यूशन देता कभी कभी कि मेरे को ऐसा चाहिए, एंड देन OTT प्लेटफॉर्म उनके खुद के जो एक क्रिएटिव पूरा रहता है सेटअप, जिनके साथ वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि ये कैरेक्टर को बढ़ाओ, लेकिन फिल्म ऐसे तो नहीं बनती है. फिल्म जो बनती है कन्विक्शन से बनती है. फिल्म जो बनती है एक आइडिया से बनती है कि भाई ये आइडिया है, मेरे को बनाना है. तो मुझे लगता है कि
डायरेक्टर को जो संघर्ष करना पड़ता है, खास करके न्यू कमर्स या रिलेटिवली जो उन्होंने एक पिक्चर बनी, सेकंड बड़ी फिल्म बनी, तो आई नो देयर वर लॉट्स ऑफ यू हैव टू कट कॉर्नर्स, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ योर स्क्रिप्टिंग, मुझे लगता है कि इस तरह से चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है, तो वो डिफिकल्ट है। एट द सेम टाइम उसका फ्लिप साइड भी है, पॉजिटिव साइड भी है, ये है कि बहुत से फिल्म मेकर के पास जो आइडिया है, देयर नो सो मेनी गुड फिल्म मेकर्स आर कमिंग, जो एक आइडिया लेके जाते हैं, प्लेटफॉर्म उसको ओके करता है, शायद आज से 10 साल पहले उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बिल्कुल ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी वो फिल्म मेकर्स को मिलते हैं। आज शॉर्ट फिल्म है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म खरीदता है, अच्छी लगी तो दिखाता है, उससे भी उनका वहाँ से एक अपसर चल होता है, मतलब शॉर्ट फिल्म मेकर्स हैव टर्न इनटू फ्यूचर फिल्म मेकर्स का जो मेरे ख्याल से आपका अगर ओटीटी में भी स्टेज जाता है, लाइक मुझे पता है कि आज जैसे बबली वॉन्स और इंडिया लॉकडाउन को इतना रीच हुआ है, मैं जिधर भी जाता हूँ कोने कोने में, गाँव में, आई ट्रैवल अ लॉट, तो वहाँ पे भी मैं देखता हूँ कि लोग कह रहे हैं हमने आपकी पिक्चर देखी इंडिया लॉकडाउन, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि देखो रीच यहाँ पे, कभी कभी लगता है अगर सिनेमा होता तो शायद ये पिक्चर देखने जाता नहीं, ठीक है ना, बिकॉज इट हैव अ बिग डिजायरेबल स्टार कास्ट, इट वाज अ वेरी रिलेटिवली ऑल थिएटर पीपल, आई मीन से पीपल फ्रॉम द वेब्स एंड थिएटर्स वो लेके बनाया, सो एक चीज वो भी है, तो मुझे लगता है कि फिल्म मेकर्स के लिए इज वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो कि टू गेट द राइट फाइनेंस, एंड खास करके बिकॉज आई नो, बिकॉज एज अ फिल्म मेकर आई आल्सो वी आर वेरी इमोशनल विद द स्क्रिप्ट, बिकॉज हम लोग ने 6-7 साल लगे होते हैं उसमें रिसर्च करके फिल्म बनाने के लिए, सडनली कोई क्रिएटिव आके बोलेगा नहीं ये कैरेक्टर बहुत मजा नहीं आ रहा, उसको निकाल दो पिक्चर से, यू नो, या इसको इसमें कोई ये कैरेक्टर ऐड करो, आपको लगता है यार मैं कैसे ऐड करूँ, ये तो था ही नहीं ऐसा कैरेक्टर, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो आई होप कि फिल्म मेकर्स शुड अंडरस्टैंड एंड देयर शुड बी इन बिटवीन, जहाँ पे द पैसा डालने वाला तो हमेशा ये कहेगा मेरा पैसा है भाई, हमारे चैनल ने एक रिसर्च किया है, उसके ऊपर से इस तरह का ये चलता है, उनको हर 15 मिनट में एक झटका चाहिए ताकि हुक रहे हुए, तो आप बंद नहीं करें चैनल, आई एम ओटीटी की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन एट द सेम टाइम चलने वाली थिएटर में पिक्चर चलती है, मैं बोलता ना हमेशा, जैसे पठान लंबी फिल्म थी, गदर लंबी फिल्म थी, इट्स डन ब्रिलियंट, जवान या इट्स डन फैबुलसली वेल एट द बॉक्स ऑफिस, तो क्या चलता क्या नहीं चलता, देयर इज नो डॉक्ट्राइन, देयर इज नो फॉर्मूला व्हाट वर्क्स एट द बॉक्स ऑफिस, आई फील न्यू फिल्म मेकर्स शुड ऑब्वियसली एक ब्रांड लेके उनको चलना पड़ेगा, और जहाँ पे लगता है भाई इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरे स्क्रिप्ट को ज़्यादा, एंड दे शुड गो अहेड विद इट, जहाँ पे उनको लगता है भाई, देखिए हो सकता है मैक्सिमम पहला कन्विंस करना चाहिए, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, कि भैया दिस इज माय स्क्रिप्ट, दिस इज अ थिंग, एक्टर्स दैट इज देयर। यू नो, आपने एक बहुत पर्टिनेंट बात रेज किया है कि जब हम फिल्म बनाते थे फॉर थिएट्रिकल कंजम्पशन, तो तभी डिस्ट्रीब्यूटर्स कह देते थे कि भाई ये सीन निकालिए या ये सीन ऐड करिए, या ये पर्टिकुलर एक्टर की सेलिब्रिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, एंड आज हमने सुना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आज हमने सुना है, वी हर्ड दैट द ओटीटी प्लेटफॉर्म, छोटा मोटा सजेशन आता है जहाँ पे हमको लगता है ठीक है यार ये ठीक है, उसके लिए मुझे ऐसा कोई मेजर, आई एम नॉट मेड अ फुल फॉर्मेट सीरीज अब तक नहीं आया, लेकिन ये मैंने भी सुना है तरन के अगर लॉन्ग फॉर्मेट बनाओगे तो वो उनका आएगा कि भाई इसमें ऐसे चेंजेस चाहिए, which I have still not experienced. I am still working on the script right now, so it's very difficult for me to say. लेकिन people have made some brilliant stuff on the OTT also, जो लोगों ने पसंद किया है, जो अच्छा लगता है, कन्विक्शन के साथ बनाया है, मुझे लगता है ऐसा, मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ जैसे कहा कि वो हमेशा रहेगा कि भाई इसमें ये डाल दो या इसमें ये चाहिए या वो चाहिए, वो तो 100% रहेगा, बिकॉज उनका रिदम होता है, उनका जो स्टाइल होता है वो अलग है, जो हम लोग को नहीं मालूम होता है, जैसे आपने कहा डिस्ट्रीब्यूटर है, पर लेकिन अल्टीमेटली ये किसकी भी गारंटी नहीं है कि हमने सामने वाले का जो चीज़ उन्होंने बोला वो डाल दिया और उसके बाद सीरीज चलेगी या पिक्चर चलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है। मैं बोला ना ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों ने बोला इसमें ये डाल दो उसमें वो डाल दो, मैंने पहली पिक्चर ऐसी बनाई थी त्रिशक्ति, किसी ने बोला इसमें कवाली डाल दो, किसी ने बोला लड़की को बिकिनी में डाल दो, किसी ने बोला इसमें एक्शन डाल दो, किसी ने बोला इसमें कुत्ता डाल दो, सब डाल दिया पिक्चर में, लेकिन वो पिक्चर फ्लॉप हो गई। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई फिल्म में ये सब चीज़ होने से चलती है, बिकॉज क्या होता है डेब्यू फिल्म है तो फिल्म मेकर्स गेट स्कैर्ड यार, कि मेरा करियर है, कि अगर मेरी एक पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी तो मैं प्रोफेशनल ऑबिचुरी भी लिख देंगे यहाँ पे कि खत्म हो गया। तो मुझे लगता है कि द फियर इज देयर विद द फिल्म मेकर, और वो चाहता बेचारा इतना ही मे बी गॉन टू अ इंस्टीट्यूशन या वो स्ट्रगल किया होगा किसी डायरेक्टर के साथ 5 साल 6 साल काम करने के बाद, वो हर कोई चाहेगा ना मेरी डेब्यू फिल्म चले बोल के,
तो उसको लगता है यार थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना है, या थोड़ा वो बोलेगा चेंज करो, ट्वीट करो, डाल देते हैं यार, कम से कम मेरी पहली पिक्चर तो आएगी मार्केट में कि भाई पीपल थिंक हाँ भाई इसने फिल्म बनाई बोल के। मैंने आई वॉज रेडी इन माई लाइफ कि मेरे को अगर पहली पिक्चर मैंने इसलिए बनाई कि आई वॉज वर्किंग विद राम गोपाल वर्मा एज एसोसिएट डायरेक्टर, फ्रॉम रात टू रंगीला आई वॉज एसोसिएट डायरेक्टर, एंड बट जब मुझे पिक्चर नहीं मिल रही थी या मेरे पास कोई बड़ा एक्टर सपोर्ट में नहीं था, तो मैंने बोला चलो एक कमर्शियल फिल्म बना दो। लोगों ने मुझे कहा यार तुम बहुत आर्टिस्टिक बोलते हो, आर्टिस्टिक तुम्हारा थॉट है, यू शुड मेक कमर्शियल सिनेमा। जैसे हम टॉकिंग अबाउट 96 97 जब ऑब्वियसली कमर्शियल सिनेमा चरण पर था अपने, तो ऐसा ठीक है, बिकॉज आई थिंक मैं गलत हूँ। बोला कि मेरे को एक अच्छे प्रोड्यूसर ने, मैं नाम नहीं लूंगा, प्रोड्यूसर ने कहा कि मेरे बोला सर ये बहुत मैसेज ओरिएंटेड फिल्म है, तो उसने बोला कि हमारा मैसेज क्या है मेरे को दे दो, मैं सबको मैसेज भेज दूंगा 1-1 रुपए का, 500 रुपया 600 कितने 500-600 दोस्त थे तुम्हारे, क्या अलाउ व्हाट्सएप नहीं था उस टाइम पे, बोला मैं 1-1 रुपए का मैसेज भेज देता हूँ, तुम्हारा मैसेज क्या बताओ, उसके लिए मैं 3.5 करोड़ की फिल्म नहीं बनाऊंगा। तो फिर मैंने बोला ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया कि मैसेज ओरिएंटेड फिल्म नहीं तुमको कमर्शियल। तो दैट टाइम आई आल्सो फेल्ट इट, हाँ यार, लाइक beggars can't be choosers, and how you know, have you seen the industry, you've seen so many filmmakers come go, actors come go, you know how it is to survive. I've been surviving from last 23 years, from Chandni Bar, if you see my success, to India lockdown. It's a great tenure, and I made the film the way I wanted. I'm not in some camp, I'm not in some lobby, I'm not in any gang. तो मैं अपना खुद का इंडिपेंडेंट फिल्में बनाता हूँ, अपने में खुश रहता हूँ। But you know, a lot of filmmakers that I know of, when they start writing a script, let's go back when you start writing a script, actors तो बाद में आते हैं. Lot of storytellers, lot of directors keep particular actors in mind कि हमको ये actor चाहिए इस फिल्म में, और या इस सीरीज में, या इस digital film में, anything, and then they write those characters. Do you also go the same path? नहीं, I never write like that. I make the film first. I mean the script first. Right. कि मुझे लगता है ये, I get obsessed with the protagonist in the film. Okay, I get obsessed with the protagonist. जैसे मेरी पिक्चर में जैसे मुमताज है, मेघना है, all these characters in my movies I'm talking about, Madhavi in Page 3. So before Page 3 I wanted to make. So I approached big 2 actresses of the film industry. Very big actresses. I told them ये सब्जेक्ट हो, तो they laughed, ये कौन सी पिक्चर है Page 3, what is the name only, टाइटल समझ में नहीं आ रहा था। तो मतलब एक ऐसा जर्नलिस्ट की कहानी, तो they were not interested, some were busy, some liked the script but they said कि we cannot do because we have other assignment। और मेरे में क्या है ना, I am a very restless person in terms that I have a subject, I want to make the film now and with anybody। तो that's how I felt it कि I want to make the film now, and I told my producer कि यार मेरे को कोई बड़े एक्टर नहीं अवेलेबल है, यू वांट टू मेक दिस मूवी न्यू कमर। तो इसे न्यू कमर के साथ कैसे बनाऊंगा मैं, कैसा, एवरीबडी वांट्स की इक्वेशन, पैसा कहाँ से आएगा, कितना मेरे को मिलेगा। तो मैंने बोला ये चांस लेने वाली बात है। तो Page 3 वाज मेड इन 2.5 करोड़ बजट। तो मैंने बोला 2 करोड़ 50 लाख रुपया हारने की क्षमता है तेरे में, या सोच लेना कि तू वेगास में गया, जुआ खेला और हार गया, बी रेडी फॉर इट। तो मैंने अगर तेरे में दम है तो फिल्म बना। तो इसे ओके ओके। तो आई रिमेंबर दैट टाइम ही वाज इन लंदन, अ फ्रेंड ऑफ द प्रोड्यूसर, ही वाज इन लंदन, ही सेड किसको लेके बनाएगा। तो आई सेड दिस गुड एक्ट्रेस इज देयर, दिस अपर्णा सिंह's daughter कोंकणा सिंह शर्मा, एंड हु इज इन कलकत्ता। उसने एक फिल्म की मिसेस एंड मिसेस, यार वेरी निश फिल्म, वेरी गुड फिल्म, ब्रिलियंट मूवी, बट पिक्चर बहुत कम जो उन्होंने देखी, बट वाज नॉट कमर्शियली, बट एक अच्छी फिल्म थी वो। तो मैंने बोला शी इज वेरी गुड इन द फिल्म, उसको ले लेते। अरे बट यू आर टॉकिंग अबाउट दिस बिग एक्ट्रेस, नाउ यू आर टेलिंग मी टू मेक दिस फिल्म विद दिस वेरी न्यू कमर, शी वाज न्यू कमर, नोबडी न्यू इन हिंदी सिनेमा। तो मैंने बोला यार शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, आई थिंक उसको परफेक्ट जाएगी रोल के लिए। एंड आई रिमेंबर ही, मतलब तुम जाके तो लंदन में किधर, मेरे ख्याल से साउथ हॉल में गया और उसे मिसेस अय्यर की कैसेट लिया या डीवीडी, आई डोंट रिमेंबर दैट। वो जाके उसने देखा, बोला एक्ट्रेस तो अच्छी, लेकिन यार बॉक्स ऑफिस क्या होगा, कोई इसका भूल, बाय द फिल्म। मैं बोला ये तो जुआ है, खेलना है तो खेल। एंड देन आई अप्रोच कोंकणा एंड आई टोल्ड हर, एंड कोंकणा हैड सीन माय मूवी सत्ता एंड चांदनी बार, एंड शी सेड मधु सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स एंड आई वुड वांट टू वर्क विद यू। आई सेड व्हेनेवर यू कम टू बॉम्बे आई हैव टू नरेट यू अ सब्जेक्ट। तो कोंकणा, व्हेन आई मेट हर एंड आई टोल्ड हर कि एक ऐसा सब्जेक्ट है अबाउट दिस रूकी journalist, she goes with the party, she attends parties, the Page 3, she said what is Page 3, she asked me, so I the Page 3 party people circuit and she's reporting. So I like the whole, I was trying to explain it and she said, sir, I know you're a good filmmaker, I'll do the film.
तो दैट वाज द कन्विक्शन ऑफ आर्टिस्ट, यू नो, you're a good filmmaker, तुमने अच्छी फिल्म बनाई है, मैंने चांदनी वार सत्ता देखी है, and I am sure you'll make a good film, so let's do the film. So that conviction was very strong, and as पूरी जब तुम्हें स्क्रिप्ट रेडी होगी तो मेरे को दे देना, because it was basic line था कि जर्नल मेरे subject was there, destination was there from beginning to end, but then it didn't have a screenplay. I sometimes make Page 3, I'll tell you, I made movie on the set. I made movie, I swear it, I made movie. I mean, I know the journey कहाँ से कहाँ रहेगा, लेकिन मोस्टली बहुत सी चीजें सेट पे मैंने चेंज करता हूँ, इसमें ऐसा कर दो वैसा करो, बिकॉज दैट मूवी वाज लाइक दैट, बट द ट्रैक वाज देयर इन माय माइंड. समटाइम इट इज लाइक दैट. फॉर मी इट्स वेरी नेसेसरी टू हैव, बिकॉज व्हाट हैपेंस, यू नो, फिल्म मेकिंग, अब मैं आपको बता रहा हूँ, तरन इज अ ऑर्गेनिक थिंग. आपने 6 महीने पहले कुछ अच्छा लिखा हो, 6 महीने के बाद आपको खुद को लगता है यार नहीं यार ये वर्क नहीं करेगा. इट हैपेंस. It happened. I've done so many times. I remember in a film, I've just tell the audience, there was a scene between Rajpal Yadav and Tabu in Chandni Bar, जो उनको डायलॉग भी दे दिया मैंने सेट पे, दोनों को. देवोन का डायलॉग था जब उनकी बेटी आती है बार डांसर से, एंड बड़ा डायलॉग था, where she gets money to bail out the brother. Right. So पूरा डायलॉग लेके तब्बू रेडी, राजपाल रेडी, and suddenly I told my associate, I said, this dialogue is not working on the set. I said बहुत मेलोड्रामा लग रहा है ये F पोर्शन में पिक्चर में. I said it's not working. तो बोला क्या? तो मैंने डायलॉग सब कट. तो बोला क्या? मैंने बेटी ने देखा, उसको देखा, तब्बू ने देखा, बेटी आई है पैसा लेके, एंड राजपाल तब्बू ने एक दूसरे को लुक एक्सचेंज किया थे. न्यू व्हाट इज इट कि द डॉटर इज गॉन टू द बार टू गेट मनी. सो आई सेड ये ड्रामा डायलॉग बाजी ना वर्क नहीं करता. आई टोल्ड ऑन द सेट, ऐसे सब डायलॉग निकाल दो, इट वोंट वर्क. सो दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज वी हैव टू डू इट. यू नो, फिल्म मेकिंग में हमेशा बोलते हैं ऑर्गेनिक चीज़ें, कभी कभी चीज़ समटाइम यूसेल्फ भी आपको लगता है यार मैंने 4 महीने पहले स्क्रिप्ट लिखी थी लेकिन आज वर्क नहीं करा. समटाइम यू सी बेटर वर्क, समटाइम यू फील कि समबडी इज ऑलरेडी ए सीन ऐसे आ चुका है, आपको लगता नहीं यार एक क्लीशे वो वर्क नहीं करेगा. तो दैट इज ऑल्सो देयर वन थिंग, वो होना भी चाहिए, बिकॉज सैक्रोसेंट नहीं है कि आपने जो लिखा वही शूट करना है, क्योंकि बायोपिक नहीं बना रहे हो. अब बायोपिक बना रहे हो, वर्ड बाय वर्ड कोई बुक में लिखा है तो मेरे को समझ में आता है कि भाई पर्टिकुलर चीज़ है, ये हिस्टोरिकल है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा. फिल्म मेकिंग जो मैं फिक्शन बनाता हूँ, रियलिटी के साथ नाम नहीं लेके बनाता हूँ, लेकिन तो भी उसको चेंजेस करना जरूरी है. राइट. ओके, तो ये तो पूरी पेज 3 की बात, you know, which is one of your finest films and which commercially did very well at the box office. But when you look back on your career, on your filmography, आपको लगता है ऐसा, in your opinion, कुछ फिल्में आपको बनानी ही नहीं चाहिए थी, या कुछ ऐसी फिल्में जो आप आज बनाते तो अलग तरीके से बनाते? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जितनी फिल्में बनाई है त्रिशक्ति से लेकर, मैं कभी कभी देखो त्रिशक्ति जैसे मैं आपको रिएटरेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो फिल्म में नहीं बनाता, अगर मान लो कि 2 मिनट के लिए मान लो कि त्रिशक्ति मैंने लोगों ने जो बोला वो सोच के बनाई कि कमर्शियल फिल्म, इसमें ये भी डालो वो भी डालो वो भी डालो, अगर वो पिक्चर चल जाती तो मैं चांदनी वार कभी नहीं बनाता. I wouldn't be making Chandni Bar. Then I would have gone to track only to making commercial, because मुझे भी लगता है तो सेफ जोन है. Right. कि कमर्शियल सिनेमा चल रहा है. मेरे को पब्लिक जैसे होती है, अभी डेविड साहब से मिला, he said मेरे को people doesn't want to give money to experiment with my film. डेविड साहब बोले मेरे को, कि बोलता है हमको तो वो देते भैया तुम बनाओ मसाला फिल्म, एंटरटेन करो. तो मुझे लगता है अगर त्रिशक्ति चल जाती तो मैं भी वो ट्रैप पे फंस जाता कि नहीं यार ये सेफ जोन है भैया. एंड जो इन्वेस्टमेंट आते हैं वो बोलते नहीं भाई तुम ऐसी फिल्में बनाओ. तो हो सकता है चांदनी वार, पेज 3, फैशन या कॉर्पोरेट जैसी फिल्में कभी नहीं बनाता. देन आई वुड हैव स्टिक टू दैट काइंड ऑफ जोन. सो समटाइम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, समटाइम देयर इज फेलियर इज वन स्टेप अहेड फॉर द सक्सेस. तो फेलियर ऑफ त्रिशक्ति गॉट मी टू मेक चांदनी वार, बिकॉज देन आई सेड कि आई वांट टू मेक दिस सिनेमा व्हिच आई बिलीव्ड इन इट. And trust me, even some films have not done of my well at the box office, they are break even, because I'll tell you why. Because I make film in a budget. मुझे पता है बजट, मैंने फिल्म में इतने छोटे बजट में बनाने का मेरे को मालूम है कि मैं वही आदमी जिन्होंने 1.5 करोड़ में चांदनी वार बनाई है. अच्छा. हाँ, 1.5 करोड़ में चांदनी वार बनी, तो आई नो कैसे फिल्म बनाई जाती है. करीना कपूर के मैंने बोला ना, ड्रेसेस जो थे हीरोइन में 1 करोड़ 75 लाख के थे, सिर्फ ड्रेसेस था. तो आई फील कि मुझे लगता है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं कभी भी पिक्चर की, और अगर मेरे को बोला जाएगा तो मैं वैसी फिल्म बनाऊंगा अभी भी. ऐसा आई हैव नो रिग्रेट्स, ऑल ऑफ माय बेबीज. Right. Okay. A few more questions before we ask the audience to actually, just a moment, please. But before we ask the audience to come in, but Yeah. you know, you've made different kind of cinema. You've made dark films. You've made very serious films.
But you also made a light-hearted film years ago called Dil To Bachcha Hai. Yeah. And it was a beautiful film. Beautiful, it did very well. It did Yeah. very well. Ajay Devgn Yeah. and Imran Yeah, Khan, yeah. together for the first time, actually. Yeah. Yes. You never attempted, after that, you of course, Bubbly Bouncer. Bubbly Bouncer was but, one movie. But again, you went back to the same serious zone. You know what happened because of the image. See, Right. behind the scene of all my films, all my actors watch for me the kind of humor I got, the kind of one-liners I say. Right. Mimic also sometimes a lot of people. So I feel so. मेरे में वो है, लेकिन मेरी पिक्चरों में देखो मैं हमेशा ह्यूमर रखता हूँ. You know, I tell you, David Dhawan, he saw India lockdown. He had seen Bubbly Bouncer, he had loved it very much. He saw India lockdown and he called me. He said, तूने बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई, बहुत अच्छी लगी मेरे को. तो मतलब why? He said कि अगर इंडिया लॉकडाउन एनी अदर फिल्म मेकर होता शायद इसको डॉक्यूमेंट्री बनाता या बहुत बोरिंग बनाता या स्लो पेस बनाता. बोले यू मेड इट द फिल्म वेरी एंटरटेनिंग. तो तूने पंचेस वंचेस बहुत अच्छे लगे, पिक्चर का लेंथ तूने बहुत कंट्रोल किया, विच आई लाइक्ड अबाउट द फिल्म. ही सेड अमेजिंग परफॉर्मेंस. किधर भी डल मोमेंट आता सडनली खट करके एक झटका आता, बिकॉज देयर वर 4 स्टोरीज गोइंग ऑन टुगेदर, 4 सब्जेक्ट चल रहे. तो मैंने उनको डायलॉग मारा, मतलब कहीं अंदर दिल के अंदर सब बनमोहन देसाई छुपा हुआ है. सो इट इज वेरी ऑनेस्टली. तो मैं आई लव एंटरटेनिंग सिनेमा. और मुझे लगता है फिल्म जो होती है, पीपल हैव टोल्ड मी इन सो मेनी इयर्स, 15 फिल्म्स आई मेड, and they said, Madhur, your film is not artistic cinema, very arty cinema, Yeah. not very commercial cinema, you make middle of the road cinema. This is a term which has been used by the critic and the journalist for me. Right. कि you smartly make movies. Okay. कि तुमको पता है कि कितना entertain करना, कितना मैसेज भी तुम्हारा अच्छा जाता है, वो भी रखते हो. Right. तो ये मैंने क्राफ्ट डेवलप किया है इतने 23 सालों में. Yes. And I feel I'm definitely going to pursue this in the same way. Right. Okay. Lastly, before we ask the audience to actually ask questions to you, there are a lot of, I'm sure there are a lot of aspiring filmmakers or people who want to join the film fraternity in some way or the other. उनको आप क्या advice देना चाहेंगे? मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि एक तो ना देखिए, हमारे टाइम पे OTT नहीं था. हाँ. और हमारे टाइम पे आपकी फिल्म अगर फ्लॉप हो गई खत्म है. और हाँ. बहुत से डायरेक्टर्स आए जिन्होंने फिल्में बनाई, एक आधी फिल्म बनाई और निकल गए. आज की तारीख में OTT हैज बिकम अ वेरी बिग एंड OTT इज हियर टू स्टे वर्ल्ड वाइड. मुझे लगता है कि आज इनोवेटिव आइडिया, डिफरेंट थॉट के साथ आप फिल्म बनाइए एंड इट इज एब्सोल्युटली ग्रेट थिंग. बिकॉज आज OTT में OTT स्टार्स हो गए, OTT फिल्म मेकर जो है जिनका बड़ा नाम हो गया, दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी. एंड इट्स नॉट उद्देश्य कि मनी पैसे का है, इट्स अबाउट क्रिएटिविटी, सेटिस्फेक्शन होता है. देयर आर सर्टेन स्क्रिप्ट आई एम वर्किंग विद सम OTT, मेरी बातचीत चालू है, जो मुझे लगा मैं शायद फिल्म के लिए नहीं बना सकता, लेकिन मेरे को OTT मिलेगा तो आई विल गेट एम्पल स्पेस टू टेल द स्टोरी. ओके, लाइक आई सेड, आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू मेक दिस काइंड ऑफ सिनेमा, जो आज आप बोलते हैं ना, तो OG मधुर भंडारकर who started making hard hitting cinema at that time. Right. And today तो आपको इतना सेंसर भी नहीं है जितना उस टाइम पे हमको तो सेंसर करनी पड़ती पिक्चर. Everything would be censored. So मुझे लगता है कि you should stick to your conviction, believe in yourself. आपको कहीं भी जगह ऐसी भी आएंगे जो न्यू फिल्म मेकर्स में बोलूँगा कि दिक्कतें आएगी या प्रॉब्लम आएगी या अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट यू हैव टू फाइट इट आउट. इट्स अ बैटल. इट इज़ नॉट वेरी इजी, इट्स नॉट अ केक वॉक. आपको लगेगा कि आप इंडस्ट्री में आए, आपको कोई इमीडिएटली कास्ट करेगा या कोई फिल्म देगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट. और सीरीज के लिए, बट यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट एंड बिलीव इन द स्क्रिप्ट विच यू बिलीव इन इट. एक नहीं दरवाजा खुलेगा, दूसरी जगह जाइए, तीसरी जगह जाइए, वो स्ट्रगल करना पड़ता है. हर कोई करता है, आज भी हमको भी करना पड़ता है. ऐसा नहीं कि नहीं है, कि बहुत से ऐसे होते हैं एक्टर, हम जाके अप्रोच करते हैं, यार दिस स्क्रिप्ट इज वेरी गुड बट राइट नाउ आई वांट टू डू अ कॉमेडी फिल्म. Yes. ऐसा भी होता है एक्टर कि मुझे अभी कॉमेडी करनी है. जो बहुत से जाते हैं यार ये सब लाइट हार्टेड पिक्चर करो, नहीं यार अभी कॉमेडी नहीं, मेरे को ना भी एक्शन फिल्म करनी है. सो आर्टिस्ट का भी अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मैं ऑलरेडी कुछ ऐसे कर रहा हूँ तो मैं ऐसे क्यों करूँगा पिक्चर. दैट इज ऑल्सो देयर एंड देयर इज सो मच ऑफ वर्क टुडे. दैट इज. तो मुझे लगता है कि राइटर्स डायरेक्टर्स भी जो है वो 1-2 स्क्रिप्ट लेके चलना चाहिए साथ में साइमल्टेनियसली. डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट. सो एटलीस्ट 2 स्क्रिप्ट रखो कम से कम, कि ये होगा, ये नहीं होगा तो ये भी स्क्रिप्ट है मेरे पास. लेकिन पहला जिस पे आपका दिल आया उसको ज्यादा बेचने की कोशिश करो, वो जरूरी है. नहीं होगा तो फिर बोला चलो ये स्क्रिप्ट भी है मेरे पास. एटलीस्ट क्या होता है ना, फॉर अ फिल्म मेकर इज वेरी नेसेसरी
कि जो वो बेचारा ख्वाब लेके बैठा है 2 साल 3 साल 4 साल से, उसका एग्जीक्यूशन है। हर फिल्म मेकर क्या होता है, अगर मेरे पास स्क्रिप्ट है उसको दुनिया देखे, आप चाहते हो ना कि उसको दुनिया देखे, लोग अप्रिशिएट करें। दैट इज द ब्यूटी ऑफ सिनेमा, कि आप चाहते हैं उसको मैक्सिमम लोग देखे, उसको अप्रिशिएट करें। हमेशा आप एक फिल्म बनाते याद रखना वो एटर्निटी के लिए जाएगा, आप चले जाएंगे, हम सब चले जाएंगे, लेकिन वो पिक्चर 20 साल 25 साल के बाद भी लोग देखते हैं। आज भी हम लोग, विजयानंद साहब नहीं रहे, महबूब साहब नहीं रहे, गुरुदत्त साहब नहीं रहे, लेकिन उनकी पिक्चरें आज भी उतनी रेलेवेंट है और आज भी हम उनको देखते हैं। यू सी, तो वो बहुत जरूरी होता है कि आप हमेशा रेमिनिसेंस जो करेंगे, लास्ट जो पास्ट जो होता है वो पिक्चर हमेशा याद रखी जाएगी, जो भी होता है वो जरूरी है। तो आई थिंक फॉर न्यू कमर्स यू शुड बिलीव इन द कन्विक्शन। एक तो जो आपको लगता है ये पिक्चर है, हो सकता है अप्रोच करो, एक नहीं 2 3 4 5 एक्टर को अप्रोच करो, उसमें कोई ना कोई हाँ बोलेगा। या सर, अगर बात करना चाहेंगे तो आपकी जो फिल्म है फैशन, उसके रिगार्डिंग मैं बात करना चाहूँगा कि हर एक पहलू पे आपकी ये जो फैशन फिल्म है ये बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, चाहे वो एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस हो या स्टोरी हो, हर एक पहलू पे, या डायरेक्शन हो, एडिटिंग हो, सब कुछ एक बहुत ही बढ़िया सी फिल्म आपकी फैशन रही है। और इसके माध्यम से क्या फैशन जैसी फिल्में क्या आज के तौर पर क्या हम देख सकते हैं, देख पाएंगे? और दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि आप रियलिस्टिक फिल्में बनाते हो, तो ऐसे समय में क्या आपको कई दिक्कतें आती है कि अगर मैं ऐसा करूँगा, ऐसी बात कहूँगा, स्टोरी में लाऊंगा, तो मुझे कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? ये सोचते समय भी आप फिल्म बनाते हो और वो फिल्म सक्सेस हो जाती है, तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं और उसका सामना आप कैसे करते हो? देखिए क्या होता है कि ये बड़ा मेरे ख्याल से ख्याल है कि फैशन जैसी फिल्म, मेरे ख्याल से कुछ फिल्में बन जाती है, ठीक है ना, कुछ बन जाती है, लोगों को पसंद आती है, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और बहुत ही हमेशा वो दिलों में छा जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि मैं फैशन के बाद फैशन जैसी फिल्में बनाऊंगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट, आपको पता है फैशन के बाद मैंने जेल बनाई पिक्चर, बहुत ही अलग टाइप की फिल्म थी, छोटे बजट की फिल्म थी। कि ऐसा नहीं कि फैशन यदि ब्लॉकबस्टर होगी तो अभी तो यार मैं 25-20 करोड़ की फिल्में बनाऊंगा, 30 करोड़ की फिल्म बनाऊंगा, ऐसे बहुत से होते फिल्म मेकर्स करते भी है। बट मैंने कभी भी ऐसा कॉन्ट्रास्ट देखा है लाइफ में। मैंने पेज 3 कॉर्पोरेट के बाद ट्रैफिक सिग्नल बनाई, ट्रैफिक सिग्नल के बाद मैंने फैशन बनाई, फैशन के बाद मैंने जेल बनाई। तो मुझे ऐसा हमेशा, जेल के बाद दिल तो बच्चा है बनाई, तो मुझे लगा कि लाइफ में इस तरह मैं कभी भी इस हिसाब से देखता ही नहीं हूँ कि बॉक्स ऑफिस कैसा होगा। 100% बॉक्स ऑफिस का मुझे पता है कि जैसे मैं खुद फिल्म का आदमी हूँ, मैं जाता हूँ थिएटर में जाके पिक्चर, मोटा मोटा मैं जाता हूँ, मेरा हमेशा यही होता है कि पिक्चर चले ना चले उसकी लागत जो है वो अपने प्रोड्यूसर को आनी चाहिए, वो ज़रूरी होता है, मेरे लिए वो ज़रूरी है। दूसरा आपने कहा कि भाई पिक्चर दिक्कत आती कि नहीं आपको लोगों से, मुझे बहुत दिक्कत आती है। मुझे तो कई जन ऐसा बोलते हैं, जब भी मैं कोई हॉस्पिटल में जाता हूँ वहाँ पे किसी को मिलने देखने, तो डॉक्टर आके पूछते सर क्या आप हम पे फिल्म बना रहे हो क्या आप, तो उनको वैसा भी फीलिंग आती है। तो मैं बता रहा हूँ, तो या लॉट ऑफ पीपल दे फील कि अरे अब तो आई नो, बिकॉज यू हैव टू बैकलैश, सबका आता है। पेज 3 के बाद लोगों ने बहुत बैकलैश किया, मेरे को बोला कि भाई आपने पेज 3 वाले को सबको एक ही इसमें पैन कर दिया, बुरा बता दिया। कॉर्पोरेट के टाइम पे बहुत से संस्था है, उन्होंने कहा कि भाई आपने कॉर्पोरेट को एक ही ब्रश में ब्रश कर दिया कि सब कमीने हैं इधर, दैट काइंड ऑफ थिंग। चांदनी बार के बाद बार बंद हो गया मुंबई में, कहा कि मधुर भंडारी रिस्पॉन्सिबल है कि इसने बार पे फिल्म बनाया। मैं बता रहा हूँ, तो ऐसी कई चीज़ें होती है, बैकलैश आता है। हिंदू सरकार के टाइम पे पॉलिटिकल बैकलैश मिला मुझे बहुत, ये से पीपल प्रोटेस्टेड, मेरे घर के बाहर लोग आए, प्रोटेस्ट किया, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मॉब आया मारने के लिए। तो ऐसे कई चीज़ें हुई लाइफ में, तो ये तो होता रहेगा, बिकॉज मैं फिल्में बनाता हूँ उस हिसाब से, कन्विक्शन से बिलीव करता हूँ कि इस तरह का सिनेमा बनाओ, तो ये हमेशा रहेगा। मैंने कोई, देखिए कोई भी ऐसा है ना कि आप ट्विटर पे अगर आपने डाल दिया कि ही इज़ माई डॉगी, वेरी गुड डॉगी, तो लोग बोलेंगे आप बिल्ली नहीं पालते हो, कुत्ता क्यों पाल रहे हो? ऐसा भी होता है प्रॉब्लम। आपने ब्लैक शर्ट डाल दिया तो बोले अरे आपने बोला माई लवली ब्लैक शर्ट, बोलो ब्लैक क्यों डाला, व्हाइट क्यों डालनी? तो ये प्रॉब्लम आता है, ये हर चीज़ के लिए आएगा। ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि बहुत ही कलेक्टिवली आपको लोग पसंद करेंगे या ये करेंगे। कई लोग को बोलते हैं मधुर मेक्स वेरी रियलिस्टिक हार्ड हिटिंग सिनेमा, एक्सपोजे करते रहता है पिक्चर में, बैंड बजाते रहता है लोगों की, ऐसा भी बोलते लोग। 100% मेरे को बोलते, मैंने लोग कहते भी, कभी कभी मैं लिफ्ट में मिलता हूँ, लोग बोलते और मधुर जी क्या चला, किसकी बैंड बजा रहे हो?
तो मेरा ऐसा हो गया कि खुलासेबाज हो गया कि फिल्म में को खुलासे करता है लोगों की, बस सर ऐसे भी आते लोग, सर ये सब्जेक्ट आप ही बनाओ, ये आप ही बता सकते हो सच्चाई, तो ऐसा एक इमेज हो जाता है लोगों का। इतने सालों में आपने बनाई है ना कि मधुर कैन में कुछ भी हो जाता है देश में तो इमीडिएटली एक ट्वीट आएगा उसमें, मधुर विल स्टार्ट मेकिंग मूवी ऑन दिस सब्जेक्ट, मधुर विल स्टार्ट मेकिंग मूवी ऑन दिस सब्जेक्ट, ये रनिंग जोक हो गया है। Next question. Hello. Yeah. Hello, Madhu sir. My question is that what is the basis you choose that this subject will go for OTT and this will go for theatrical release? And does subject treatment differs in both? If you are going for OTT, then you will choose a different way to tell a story. And No. if you're going for theater, then you have to tone down or curb some things. No. Definitely OTT, yeah. Definitely. I shot India Lockdown, Bubbly Bouncer, both the film. दिल में तो मैं फिल्म का थिएटर वाला ही आदमी हूँ कि थिएटर में देख रहा हूँ, पिक्चर में थिएटर में देख रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको थिएटर के लिए ही सोचना पड़ता है, या विजन शुड बी बिग। हाँ, OTT के लिए ये है कि सर्टेन कंटेंट और सर्टेन डायलॉग्स which you feel कि this can be passed on the OTT, that is the plus point of it, कि वहाँ पे सेंसर नहीं होगा, सेंसर आएगा नहीं। बट आज की तारीख में तो हम लोग को सेल्फ सेंसर करना ही पड़ता है कि हमको लगता है भाई, जैसे मैंने कहा ना कि कोई हर्ट हो जावे, कोई किसी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो जावे, वी हैव टू सी एवरी एस्पेक्ट, तो आपको वॉलंटरी अपने आप ही करना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये बात है कि थोड़ा सा आपको लगता है, जैसे अब हो सकता है थिएटर के लिए मैंने लेंथ बनाई 2.25 घंटा, आई एम गिविंग एग्जांपल, लेकिन मेरे को लगता है OTT के लिए तो मैं 2.5 घंटा ही बना सकता हूँ, तो आप वो 15 मिनट और भी देंगे। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फिल्म एंड OTT। आपको लगता है ये सर्टेन सीन है, एक्सप्लिसिट है, लेकिन मैं दिखा सकता हूँ, OTT है तो दैट आल्सो कैन बी डन, व्हिच यू हैव द सेंसर प्रॉब्लम हो गई है, यू कैन नॉट डू सेंसर में थिएटर में, वो चक्कर है। So we'll have one or two more questions. Yeah, please go ahead. Yeah, so good morning, good afternoon, sir. Yeah. Yeah, so I'm from Bangalore, and I have one question about the Marvel Cinematic Universe, because I've noticed that Make it a little clear, what did you say? I'm asking a question about the current Marvel movies. Marvels? Yeah, Marvel. So I've noticed a trend that they're making movies in which they're showing very strong female leads, so much so that they don't have any flaws and it becomes boring. So I've seen that some of the movies which are made like Heroine and PSG, that they have strong female leads and they have their flaws most likely, right? So do you think we need movies which have a strong female lead and flaws, or not required? No, I think if your protagonist is flawed, not fraud, flawed, and you feel कि edgy है, वो अच्छा बात है ना, that's a good thing, I mean to say. I don't think all my actors are differ from other films, if you see like that. So वो ज़रूरी होता है, because now in the society also when you see strong women, you love to show the character in the film. So I really feel it is very necessary also to have characters. I derive my inspiration from the society only, कि how things happen, क्या होता है, किस तरह का character कहीं ना कहीं मिला होता है. So it is very necessary, and all our actresses also love to do grey characters nowadays. It's a great thing, I think so. And ultimately, see, even if you show grey character, ultimately is कि you root for the character from the beginning or in the film. You like that person, likeable है यार. You like this person, अच्छा है इसने काम किया. There's nothing wrong in it. Flawed character होगा तो भी. Hello, sir. Just last question because Yeah, we are because running late. we're running- Yeah. Yeah, so my question is how a filmmaker finds innovation, because storytelling is very old art. So while we used to tell the story through images once, then silent cinema, then color cinema. So how a filmmaker finds innovation, because the structure is same, stories are same. There will be one villain, there will be heroine, hero. Sometimes villain is a situation, sometimes villain is a person. So how filmmaker finds innovation? See, it's very difficult to find innovation. जैसे स्टोरी टेलिंग हमने बोला सेम है, वर्ल्ड ओवर सेम है, और हम लोग फॉरेन का सिनेमा भी देखते हैं, इंडियन सिनेमा भी देखते हैं, स्टोरी टेलिंग मोटा सेम ही होता है. सिर्फ उसमें ये होता है कि आप कोई पिक्चर आपको पसंद आएगी, कोई पिक्चर पसंद नहीं आएगी. कोशिश ये होनी चाहिए स्क्रीन प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्क्रीन प्ले में हाउ मच एंगेजिंग आप रखते हो, कितना आप ग्रिपिंग होता है, वो ज़रूरी होता है. दैट इज़ वेरी नेसेसरी. स्टोरी टेलिंग तो मोर और लेस सेम जैसे कहता है वही होता है, लेकिन जैसे बैक एंड फोर्थ भी होता है,
पिक्चर बैक एंड फोर्थ आजकल बहुत शुरू होता है, सीरीज में भी बहुत होता है, when you see बैक एंड फोर्थ पिक्चर चल रही है, सीरीज चल रही है, तो आई फील इट इज़ वेरी नेसेसरी टू मोर ऑन द स्क्रीन प्ले. आई थिंक स्क्रीन प्ले इज वेरी एसेंशियल फॉर एनी फिल्म आई एम टॉकिंग अबाउट. स्क्रीन प्ले अच्छा है, कड़क है, आपको लगता है बहुत ही एंगेजिंग है, तो आपके लिए विनर है, वो जरूरी है. देन द स्टोरी टेलिंग. Okay, thank you, Madhur, for being a fantastic. Thank you so much. And thank you for the wonderful audience out there. Thank you so much. Thank you so much. That was the last question. Please give a big round of applause to Taran Adarsh and Madhur Bandarkar for giving us their valuable time for this wonderful session.